ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بنات خواتین کی ایک واحد ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں تمام قلمکار خواتین کو جوڑا جاتا ہے، اور اس تنظیم کا قیام ہوا تھا آج سے 5-6 سال پہلے۔ اس تنظیم کی فاؤنڈر اور صدر محترمہ ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ ان کا ایک پروگرام بھی اس وقت دلی کے غالب اکیڈمی میں ہو رہا ہے۔ ان سے جانیں گے بنات کیوں، کیسے، کس وجہ سے قائم کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیے کہ بنات آپ نے قائم کیا، کیوں قائم کیا، کیا مقصد تھا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ خواتین کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں وہ اکٹھا ہو کے اپنے دل کی بات کر سکیں، ادب کے متعلق، سماج کے متعلق آزادی سے گفتگو کر سکیں۔ کہیں ایسا کوئی موقع ہم خواتین کے لیے تھا نہیں۔ یونیورسٹی والے جو ہیں وہ اپنے حساب سے بلاتے ہیں، اکیڈمی اپنے حساب سے بلاتی ہیں، لیکن جو عام خواتین ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، وقت کی اور حالات کی ضرورت تھی۔ تو یہ اس کے قیام کی خاص وجہ ہے۔ اردو ادب کی ترویج، اشاعت، اس کا پھیلاؤ، بہناپے کا فروغ۔ اہم کام رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیے، اس کا اہم کام یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو ہم ایک جٹ ہوئے، 1-2 سے ہم 150 تک پہنچے ہیں۔ 150 خواتین جی، اور 16 اسٹیٹ کی خواتین ہیں، جس میں ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، ادب برائے خیر سگالی، ادب برائے سماجی ارتقاء، یہ جتنے ادب سے ریلیٹڈ کام ہیں وہ بنات کرتی ہے۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ چلتا ہے، اس پہ ادبی مذاکرے ہوتے ہیں، ایونٹ چلتے ہیں، شاعری کے، نثر کے، افسانے کے، مختلف موضوعات پر اس پر ایونٹس چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہم سال میں 2 پروگرام بڑے کرتے ہیں ہال میں، اسٹیج پر کہیں، ایک یوم تاسیس اور ایک یوم خواتین، جو ہم بہت یوم خواتین والا جی یوم خواتین، کیونکہ 8 تاریخ کو 8 مارچ سے ہم لوگ پورے مہینہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 8 مارچ کو آلریڈی اتنے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں سب شرکت نہیں کر سکے۔ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بزی ہے، کہیں کوئی، تو اس میں آگے پیچھے پہلے تو نہیں کرتے، 8 کے بعد ہی میں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے یوم خواتین کے منا رہے ہیں۔ آپ کی اس مہم میں جو خواتین قلمکار ہیں، جو پروفیسر، شاعرہ ہیں، ان خواتین کا کتنا سپورٹ ملا آپ کو؟ دیکھیے، ہمیں سپورٹ 3 طرح سے چاہیے۔ ہمیں ادب کا سپورٹ چاہیے، سب سے پہلی بات یہ، ہمارا ایونٹ کوئی ادبی چل رہا ہے تو اس میں شرکت کریں، وہ ادبی سپورٹ ہے ہمارا جسے کہتے ہیں نا شریک ہونا، شرکت کرنا، وہ ہمارا دوسرا سپورٹ ہے کہ آپ حاضر رہیں، وقت دیں ہمیں اپنا۔ تو ادب کا سپورٹ پلس وقت کا سپورٹ پلس پیسے کا سپورٹ۔ پیسہ مین آپ اپنے پاس سے آئی ہیں، اپنا خرچ کر کے آئے ہیں، خود اپنے خرچ سے آتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ کہاں سے دیں گے ہمارے پاس بجٹ تھوڑی ہے، ہم نے کسی سرکاری ادارے سے پیسہ نہیں لیا، ایک بھی نہیں لیا۔ تو ہمیں بہادر بہنیں چاہیے، بہادر بہنیں ہیں، بنات کا نام بہادری ہے۔ جان مال ہر طرح کی قربانی، بالکل ہر طرح کی قربانی چاہیے ہمیں، وہی خواتین ہمیں اور آ رہی ہیں۔ کوئی روزانہ 1-2 فون آتے ہیں، ہم بنات سے جڑنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں؟ نہیں، ہم نے بہت سنا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور جب سے ہماری کتاب منظر عام پر آئی، تب سے تو زیادہ خواہش ہے لوگوں کی۔ کتاب کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، سب لوگ تعریف وہ کتاب بہت پسند آ رہی ہے۔ یہ ایک الگ طرح کی کتاب ہے، بالکل منفرد کتاب ہے، یادوں کی جھلکیں۔ ادب میں ایک نئی صنف کا اضافہ ہوا ہے یہ اردو ادب میں، اور بہت پسند کی جا رہی ہے۔ آج اس پہ مذاکرہ تھا، بہت اچھی آ رہی ہیں اس کے لیے، اور بہت جسے کہتے ہیں کہ معتبر آوازوں نے، انور پاشا صاحب نے اور فاروق بخشی صاحب نے اور قدوائی صاحب نے، تو بہت اچھا اس پہ مذاکرہ ہوا اور بہت اچھا ذکر۔ میرے ساتھ ہیں پروفیسر انور پاشا، آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ انور پاشا صاحب، بنات کے ایک سیشن کی آپ نے صدارت بھی کی ہے، آپ نے کیا محسوس کیا بنات کے بارے میں؟ بنات ایک ایسی تنظیم ہے جس نے پہلی دفعہ جو ہماری خواتین قلمکار ہیں ان کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اگرچہ خواتین بطور مصنفہ اور بطور شاعرہ بہت پہلے سے لکھتی آئی ہیں، لیکن تنظیمی سطح پر ایک مشن کو لے کر کے اپنی شناخت اور اپنے جوہر کو اس طرح سے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے پیش کرنے کا کام اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ جو بنات کی صدر ہیں، ظاہر ہے کہ بہت ہی فعال خاتون ہیں، خود مصنفہ ہیں، ناقد بھی ہیں، فکشن رائٹر بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح سے دیگر ہم خیال خواتین کو جوڑ کر ایک تنظیم تشکیل دی، اور آج سے 5 سال پہلے 2017 میں اس کا قیام عمل میں آیا، تب سے مسلسل وہ مختلف پروگراموں کے ذریعے خواتین کے اندر جو تخلیقی جوہر
है उनके अंदर पोशीदा, जिनको नुमाया होने का, बाहर आने का मौका पहले उस तरह से नहीं मिलता था जिस तरह से मिलना चाहिए था उन्हें। इस फोरम ने, इस प्लेटफॉर्म ने यकीनन उनको ये मौका फराहम किया है। और हम ये देख रहे हैं कि आज एक किताब जिसका इजरा हुआ, वो किताब यादों की झरोखे से, जो एक तरह से तारीख़ भी है बनात की, और उसमें 48 यानी 48 ख़वातीन की तहरीरें शामिल हैं, और वो सब तहरीरें एक से बढ़कर एक हैं, जिनके हवाले से ये अंदाज़ा होता है आम कारी को कि ख़वातीन के अंदर भी बेपनाह सलाहियतें हैं, बेपनाह जौहर उनके अंदर, तख्लीकी जौहर उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको बरूएकार लाने का, उनको मंजर-ए-आम पर लाने का मुनासिब फोरम नहीं होने की वजह से वो एक तरह से वो तमाम जौहर पोशीदा शक्ल में बल्कि मर जाते हैं। उस तरह के जौहर उनको अगर मकाम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता उस तरह से। ये काम किया है बनात ने, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये अचीवमेंट है बनात का कि उन्होंने ख़वातीन को तख्लीकी सतह पर उभारने का काम किया है, उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया है, और उनकी तख्लीक़ात से पूरी दुनिया को रोशनास कराने का काम किया है। और ज़ाहिर है कि बहुत अहम काम है जो बनात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं बनात की सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा तस्नीम कौसर साहिबा। तस्नीम साहिबा, बनात आप लोगों ने क्यों कायम किया था, मकसद क्या है इसका? शम्स साहब शुक्रिया। एक तो ये बात है कि बनात जैसी कोई भी तंजीम उर्दू के हवाले से कलमकार ख़वातीन की अंजुमन का कोई वजूद ऐसा है नहीं या था नहीं इंडिया में। ऑल ओवर वर्ल्ड में ही नज़र डालिए तो सिर्फ ख़वातीन कलमकारों की कोई अंजुमन दिखती नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, जो हमने सब ये देखते थे कि देखिए जो जितनी प्रोफेसर्स होती हैं या जो कॉलेजेस में पढ़ाती हैं या टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको तो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सेमिनार्स के इससे बुलाए जाते हैं, हम लोग मकाले पढ़ती हैं, कहानियाँ पढ़ती हैं, वो तो उनको मिलता है मौका। लेकिन हर एक को प्लेटफॉर्म मिले ये ज़रूरी नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म में जो हमने बनाया प्लेटफॉर्म, उसमें हमने ये कोशिश की कि जो दूर दराज की ख़वातीन हैं और जो लिखती भी हैं अच्छा, लेकिन वो सिर्फ कितनी मैगज़ीन में छप जाती हैं या उन्हें कोई मौका नहीं मिलता सामने आने का, रूबरू होने का, यानी कलमकार ख़ातून जो है उससे जिसको कहिए कि मिलने का मौका नहीं मिलता। लोग जानते नहीं हैं कि इस कहानी के पीछे दरअसल कौन सा दिमाग है। बहुत सी ऐसी हमारी ख़वातीन थी जिन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तो ये सोच के हमने, चूँकि हम लोग सब एक ही इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं किसी फंक्शन में, तो ऐसा ही मौका हमें मिला था बिहार में प्रोग्राम में। हम सब इकट्ठे हुए थे, वहीं हम सब ने सोचा कि हम सबको मिलना चाहिए। हाँ, हम सबको मिलना चाहिए। हम किसी एकेडमी का, किसी कॉलेज का या किसी डिपार्टमेंट का हम इंतज़ार क्यों करें? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अंजुमन कायम करें, और हम खुद उसे फंड भी करें, और हम अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार करें। तो ये मकसद है। कितनी ख़वातीन को आप लोगों ने जोड़ा है? हम लोग, जो कि ख़वातीन कलमकार की अंजुमन है, तो इसमें नॉर्मल जो है एंट्री वो नहीं है। हाँ, तो वही जो ख़वातीन 100 से ज़्यादा हैं। 100 से ज़्यादा हैं। दिल्ली, बिहार से या पूरे मुल्क से हैं? बता रहे ऑल ओवर इंडिया से जो हैं, स्टेट से हैं, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, यूपी, आपको कर्नाटका है ना, वहाँ तमिलनाडु, इससे भी हैं। फिर आप गोवा से हैं, फिर बाहर चले जाइए तो आप सऊदी अरब से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, कनाडा से भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी। तो सब की सब हमारा चूँकि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बनाया था 4 अक्टूबर 2017 को। वही व्हाट्सएप ग्रुप इसकी बुनियाद है। उसके बाद फिर ये बाज़ाब्ता जो है ऑर्गेनाइजेशन हुई। पहला जलसा हमने इसी गालिब अकेडमी में किया। 31 अक्टूबर गालिब साहब से खुसूसी तो किसको नहीं है, कौन इनकार करेगा। सर साहिबा की कोशिशों से ये तंजीम जो है बहुत जल्दी तरक्की कर गई, और तकरीबन 5-6 साल के अंदर अंदर आज ये इंटरनेशनल अहमियत की हामिल है। और इनका बड़ा कारनामा है कि उन्होंने सब उर्दू की राइटर्स को एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया। मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। साहब निगार हमारे साथ हैं डॉक्टर अकील अहमद, गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी। क्या कहेंगे बनात के बारे में आप? बनात की उम्र जो है 5 साल की है जी। बाकायदा जो है इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हुआ 5 साल अक्टूबर 2017 में इसका क़याम हुआ, अमल में आया था। और उसके बाद से जो इसने बहुत जल्द ही तरक्की करते करते कई शहरों में, दिल्ली में और दिल्ली के अलावा बम्बई में और पंजाब में, कश्मीर में बहुत ही कौमी सतह के प्रोग्राम किए।
और फिर मेरठ में जो है इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह का प्रोग्राम किया था। और एक तरह का ये निगार अज़ीम का बहुत पुराना ख्वाब था। इन्होंने 20 साल पहले रशीद जहाँ पर एक प्रोग्राम किया था और जब से वो इस के लिए वो कोशा थी कि कोई औरतों की ऐसी तंजीम बने तो जिसमें कि ख़वातीन अपने अफ़साने, अपनी कहानियाँ, अपने सामान्य चीज़ें जो हैं जो भी वो लिखती हैं वो सब कुछ वो पेश कर सकें। तो ये भी हुआ कि टेक्नोलॉजी आ गई इसमें, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, उसके ज़रिए लोग जो है जुड़े रहे। और 2 साल जो कोरोना आया इन लोगों के लिए वो एक तरह का नेमत था। वो दौर जो है उसमें ख़वातीन पूरी सोशल मीडिया के ज़रिए तो वो सब मतलब फ्री थे लोग, कुछ करना नहीं था तो वो बहुत सारी तख्लीक़ात आ गई। तो इसमें जो है वो सब ने अपने को जो कुछ भी लिखा अपने बारे में या ज़्यादातर उसमें ये कि अपनी यादों को मतलब यादों ख़वातीन को जोड़ने में एक अहम काम, हाँ वो यादों के झरोखे के नाम से लोगों ने किताब चलाया भी आई है। तो वो उसी को तरतीब दिया उसमें जो कुछ लोगों ने शेयर किया था ख़वातीन ने और वो आज उसका इजरा हुआ और उसकी बहुत पजीराई हुई। और अब ये देखिए कि ऐसा नहीं देखने में आता, एक का दुक्का ख़वातीन जो है कभी किसी मुशायरे में शामिल हो गई, कहीं किसी सेमिनार में उनको बुला लिया गया, लेकिन यहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में शेर भी पढ़ रही हैं, मुशायरे में भी हिस्सा ले रही हैं और जो किताब के बारे में भी इज़हार ख़याल कर रही हैं और मज़ामीन भी पढ़ रही हैं, मक़ाले भी पढ़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कामयाबी। जम्मू कश्मीर रजौरी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो बनात एक अच्छा प्लेटफार्म है लेडीज़ के लिए। तो इससे पहले भी मैं इनके प्रोग्राम में आती रही हूँ, आइंदा भी आती रहूँगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बनात में मुझे जुड़े हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 5वां साल है ये। और बनात वो तंजीम है कि जिसमें हम लोग आके कुछ सीख रहे हैं, कुछ जो हम कुछ लिख रहे हैं हमें मौका मिल रहा है और हमारा कलम और मज़ीद कामयाबी की तरफ जा रहा है। बनात ने हमको जोड़ा है, इनकी सदर ने हमें जोड़ने के बाद एक वो स्टेज, वो मकाम दिया है जिसमें हमारी आज 2 बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। मतलब हमने बनात से इतना कुछ सीखा, उसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, वो ग्रूमिंग आई प्रोग्राम पेश करने की, वो स्टेज, वो माइक मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बनात की। मुझे 3 साल हो चुके, 4था साल शुरू हो गया बनात से जुड़े हुए और बहुत कुछ सीखा है बनात से, अदब के ताल्लुक़ से और किस तरह से एक सबको एक साथ लेके चलते हैं उस ताल्लुक़ से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बनात की कि उन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और आज बनात की किताब जो है वो झरोकों से मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।